Okay. Good afternoon, dear. Today we are going to start a favorite lesson. Come forward here. Why you are sitting on back benches? I don't know. So in this today we discuss about the location of the Russian or Petrograd. First we start the any moment or revelation. So we should be know about the location of any area. You know earlier this is different relation we have studied earlier. So what was the location of you know Petrograd? There was the one river which passes from the what was the river name? A river passes from and situation in the city or what type of location? You know river जो होती है उसका one side is left, another one side is the right. Okay. So left side, which type of settlement located at the left side? The region is going on. Labor quarters or data located at the left side, na? Or at the right side, winter. Have you studied or not? Location is given in your book. Here river is passed. This is suppose if you are Chittor. River is passes Kambiri river is say for example. So at the left side of Kambiri river, collectorate located, municipality located. At the right side, Chittor fort is located like this. Na? So royal families जैसे royal you know if any suppose today no मेवाड़ ruler एक पर वो इस टाइप की नहीं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी. Suppose today democracy होती तो you know Chittor fort may be the sign of the autocracy. Or public will start the movement. So how do we describe that issues? We'll describe at the Gambhiri river right hand side, royal quarters or royal fort were located, or at the left side, public or you know residential area located, which were the workers or employees, whatever, like this. So as it in Petrograd, Neva river is passed at the left side, quarter workers quarter allotted, and at the side you know prosperous area located. Where the royal family and their relatives or Shah or Winter. तो फिर इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था आपसे बोल ही नहीं रहे इतनी देर से फिर आप रिवीजन नहीं करेंगे एक दिन है रिवीजन करना तो फिर ऐसे आप बिल्कुल भी घर में पैराग्राफ भी शुरू कर देंगे और मैंने भी इसलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कब तक बोलते हैं चलने दो अब थोड़ा कंसेप्ट तो क्लियर करो अपने कंसेप्ट भी नहीं ओके लेफ्ट डायरेक्शन चेंज करते रहिए और हाउ टू फाइंड आउट द रिवर डायरेक्शन कैसे पता चलेगा रिवर का लेफ्ट और राइट कौन सा है वेट हाउ टू वी नो अबाउट द रिवर लेफ्ट एंड राइट फ्लो इधर से लेफ्ट डायरेक्शन ये वाला जाएगा इधर वो फ्लो डायरेक्शन से पढ़ के देख सकते हैं ओके तो लोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट लोकेशन इज गिवन इन योर बुक यू कैन क्लियर योर कांसेप्ट आप खुद ही देख सकते हो ठीक है ना मैंने बता दिया कि लोकेशन की लिस्ट तो इन लोकेशन इज गिवन रिगार्डिंग द सिटी तो situation in city not a good because due to sorry book मत खोलो रहने दो उसमें कैसे so due to the bad weather are not good in Russia bad weather Tsar was having the desire to dissolve the Duma and parliamentaries were not happy with this वापस Tsar ने वही Duma is suspended by the Tsar and that's why the parliamentary were not happy with this and 22nd Feb strike by a workers started in Petrograd. Many women also aided the strike. First time in Russia, women is support the strike, and that's why that day is known as the International Women Day. 22nd Feb is known as the International Women Day. Okay. No doubt. और वो कंसेप्ट तो क्लियर है ना कि व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल वुमेन डे ऑन 8 मार्च क्यों 13 डेज ब्रेक होता था वो इसलिए क्योंकि वहां पे क्या जूलियन कैलेंडर फॉलो होता है तो जूलियन कैलेंडर जो होता है रशिया के अंदर वो 13 डेज जूलियन कैलेंडर 13 डेज ब्रेक होता है ओके दैट्स व्हाई अभी प्रोजेक्ट टाइम रशिया में भी वही कैलेंडर फॉलो हो रहा है एजेक्शन तो यू नो ड्यू टू द जूलियन कैलेंडर 13 डेज ब्रेक तो 22nd फेब में अगर वी ऐड द 13 डेज तो इट विल बी 7th और 8 मार्च आ जाएगा
फेब है तो फेब वैसे 28 की होती है, और ईयर यू नो। तो डेट डे इज इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, डेट डे इज सेलिब्रेटेड एट द इंटरनेशनल वुमेन डे इन रशिया and came to be recognized the International Women's Day and demonstration reached to the center of the capital. The center of capital thing, you know, in Petrograd. तो those who demonstrate जिसने विरोध प्रदर्शन रैलीज स्टार्ट की थी, तो demonstration reached to the center of the capital and Nevsky as the worker reached this government imposed curfew. जो रूलर ने सामने क्या किया, उन डेमोन्स्ट्रेट को देख के क्या कर्फ्यू लगा दिया, जैसे पॉसिबल होता है ना, दिस हैपेंस इन दिल्ली, जैसे दिल्ली पे जो गाजियाबाद बॉर्डर है, तो यू नो वहाँ पे जो टिकट जो वहाँ के पिजन्स लीडर है राकेश टिकट, तो वहाँ से हट नहीं रहे थे, तो यू नो गाजियाबाद उन्होंने क्या लगाया इस नाइट को 144, यू नो मिनिमम 144 नहीं, अरे गाजियाबाद आप किस मूवमेंट क्या कर रहे हो, ना टीवी देख रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो कर क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, 144 लगा दी। 144 का मीनिंग तो नो, हमारे कोविड में भी तो लगी थी 144 का मतलब होता है ये स्पेशल एक्ट होता है कि इन दिस नॉट अ मोर देन 5% मे बी असेंबल एट द वन प्लेस, 5 से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, 144 लगे, ये किसी भी सिचुएशन में लग सकते हैं, एपिडेमिक में जब पुलिस को लग रहा हो कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करना है, या मे बी पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं किसी भी जगह, तो गवर्नमेंट कैन बी इंप्लीमेंट 144। तो एज इट हैपेंस कर्फ्यू लगा दिया गया, कोविड-19 में भी चित्तौड़ में कर्फ्यू लगा था, यू नो, कोविड-19 में लगा था ना, और स्पेसिफिक टाइम इज गिवन टू परचेज द राशनिंग आइटम और व्हाटएवर प्रोडक्ट नीड्स बाय इन आवर डेली लाइफ, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा टाइम मिलता था जिसमें वी कैन परचेज द प्रोडक्ट। तो कर्फ्यू, यू नो, कर्फ्यू में कोई मतलब जहां तक वो होता है उसके अंदर कोई रोड पे पब्लिक कोई भी नहीं आ सकता, कर्फ्यू मतलब वो सो होता है, ये भी उसी का 144 भी है, वन टाइप ऑफ कर्फ्यू होता है, पर उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया, उसमें 5% हो जाता है, और कर्फ्यू के अंदर नो कोई भी अलाउ नहीं था। जैसे एक बार लगा था कर्फ्यू जब चित्तौड़ में राइट्स हो गए थे होली पे, तो चित्तौड़ में राइट्स हुए थे होली पे, तो कर्फ्यू लगा दिया गया था, वन टाइम कर्फ्यू लगा था इन चित्तौड़, जब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन यहाँ की पब्लिक नहीं चाहती थी कि उनका ट्रांसफर हो, तो 3 डेज तक स्कूल सब ओपन रहे थे, बंद रहे थे, उस समय कर्फ्यू लगा था, और वन टाइम कर्फ्यू लगा कि कोविड-19 में लेटेस्ट जो आपको पता है। तो कर्फ्यू इज इम्पोज्ड बाय द साथ एंड एज द वर्कर इज टू द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू एंड डेमोन्स्ट्रेट को डिमोरलाइज करने के लिए, क्यों लगा कि जब पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती तो दे कांट स्टार्ट द एनी मूवमेंट, और दिस मूवमेंट हैज स्टार्टेड इन पेट्रोग्राड और विद द सपोर्ट ऑफ वुमेन्स आल्सो। तो दे अगेन केम बैक 24th एंड 25th, जैसा कि फार्मर वाला ड्रामा चल रहा है, यू कैन लिंक विद द फार्मर मूवमेंट, जैसे यू नो 26 there was what happens in Delhi, you know very well, 26 को क्या हुआ पता है आपको, रेड फोर्ट के अंदर कितने फार्मर पीपल चले गए, और लेटर इंडियन फ्लैग उन्होंने जो भी इंसल्ट जो भी किया, और जो हमारी हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज थी उसको डिस्ट्रॉय किया, जो भी हेरिटेज कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स थे बताते हैं बहुत ओल्ड क्लास जो भी रखे थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दिस हैपन 27 पुलिस एक्शन में 27 नाइट को और 28 को पुलिस ने एक्शन लिया कि यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, 144 लगा दी। उसके बाद यू नो जो फार्मर्स लीडर थे टिकट उन्होंने रोना स्टार्ट किया, और अब आप देख रहे हो कि कैसे मूवमेंट इस वाइड स्प्रेड हो गया पूरे नेशन के अंदर, सब फार्मर्स ने यूनियन बना ली, सब दिल्ली की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो एज इट हैपेंस जैसे जो मूवमेंट करने वाले थे वो साइलेंट नहीं बैठते, ऐसे 20 सेकंड जो कर्फ्यू लगा यू नो वो दे कैन रीअसेंबल, वापस आ गए वो कब 24th एंड 25th। ये जो रेवोल्यूशन होती है वो साइलेंट नहीं बैठते, एक बार उनको आप डोमिनेट करोगे तो चुपचाप रह जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर होगा फिर आ जाएंगे। तो 24th एंड 25th came back again and police and cavalrymen was appointed to keep eye on them। पुलिस और cavalrymen यू नो बुश सवार जिसको बोला जाता है, cavalrymen जो वर्ड होता है, तो they appointed to keep eye on them, उन पर नजर रखो कि ये कोई मूवमेंट करे, इन पे आप मे बी व्हाटएवर एक्शन ले सकते हो, तुमको बिल्कुल कीप आई करके उनको के ऊपर की आप बिल्कुल उनकी मूवमेंट पे नजर रखिए, व्हाटएवर दे आर डूइंग, तो कीप आई ऑन देम।
तो फेब रेवोल्यूशन इज आउटब्रेक, इसी इंसिडेंट को फेब रेवोल्यूशन कहा जाता है और यहीं से फेब रेवोल्यूशन इज आउटब्रेक स्टार्ट होता है। तो ऑन 25 फेब 1917 गवर्नमेंट गवर्नमेंट साहब तो सस्पेंडेड द डूमा, फिर वो डूमा सस्पेंडेड कर दी उसने। Politicians criticized this demonstration and returned on the street on 26 Feb. Politician revolution कौन कर रहे हैं? Workers. ये जो revolution चल रहा है workers का चल रहा है, थोड़ा माइंड में रखना। तो ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई है, वहाँ से revolution स्टार्ट हुआ है with the support of women. Later on, 18 movement also started by the socialist or demonstrate because why? कि जो डूमा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी सस्पेंड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया साहब ने। उनको लगा कि इनकी हैबिट बन चुकी है, तो वो भी जो उसके सपोर्टर्स थे वो भी अगेंस्ट पे आ गए। तो ऑन 26 एंड 27 पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड, यानी पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया पब्लिक ने। जस्ट इमेजिनेशन, ये रेस्टिंग चल रहा है सब। तो एंड रैंसैक्ड एंड प्रोटेस्ट ऑफ द ब्रेड वेजेस बेटर वर्किंग आवर्स डेमोक्रेसी। तो क्या डिमांड रखी कि हमें जो प्राइसेस ऑफ ब्रेड है वो इजीली मिले सभी को। सेकंड वन, यू नो वेजेस शुड बी इंप्रूव, वेजेस जो मिलते हैं एंड वर्किंग आवर्स शुड बी शॉर्ट, एक फिक्स होने चाहिए 8 आवर्स के जो भी। तो दैट वाज द डिमांडेड बाय द सोशलिस्ट एंड वर्कर्स ऑन 26 एंड 27 पे। गवर्नमेंट कॉल्ड द गवर्नमेंट टू द कंट्रोल दिस सिचुएशन। कभी भी ऐसा होता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि दे अनेबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, तो दे कैन कॉल द पुलिस। इफ आफ्टर पुलिस दे अनेबल टू कंट्रोल, तो गवर्नमेंट कैन कॉल द मिलिट्री। And later on, he called the on 27 police headquarters were ransacked, हमला कर दिया गया। Protest for the bread wages, better working hours and democracy also. And Russian should be democratic nation. Government called the cavalry to control this situation, but the cavalry refused to the fire on demonstrate. Why? मना कर दिया, रीजन में बता चुका हूँ आपको, शुरू कर दिया। तो such type of situation comes in any region or area, so that is known as the mutiny बोलते हैं इसको, MUTINI, यानी इसको सैनिक विद्रोह बोलते हैं। आपके सैनिक सोल्जरी अगेंस्ट में चले गए, तो दैट इज नोन एज द म्यूटिनी। और ये वर्ड क्लास 8 में यूज हुआ था 1857 में, आया था MUTINI। अरे म्यूटिनी रिवॉल्यूशन ही तो था पूरा जो 1857 का था। 1857 रिवॉल्यूशन का ये क्लास है। बड़े घबरा रहे हो आप, तो रिकॉर्डिंग से कर रहे हो। Soldiers and strike workers favor Soviet. अब क्या किया? Those who started the strike और workers, they formed the Soviet. अब उन्होंने सोवियत फॉर्म करना स्टार्ट किया कि अब एक ना तो सोशलिस्ट रहेंगे ना कुछ, we form the Soviet. तो workers come along together, the demonstrate form a Soviet. तो एक सोवियत बन गई जिसका नाम दे दिया, जो सोवियत फॉर्म हुई पेट्रोग्राड, तो पेट्रोग्राड सोवियत। तो इस टाइप से डिफरेंट यूनियन फॉर्मेशन हुआ इनसाइड रशिया एंड सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर फ्रॉम द सोवियत काउंसिल इन पेट्रोग्राड सोवियत, उसको नेम दे गया सोल्जर अलोंग विद द वर्कर्स एंड डेलीगेशन बैक टू द साहब। और ये जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स कौन थे भाई? सोल्जर का लीडर कौन होगा? सपोज एनीवन सोल्जर मे बी स्टार्ट द अपोज ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर, या मान लो रूलर के टाइम कोई अपोज कर रहा है, तो कभी कभी सोल्जर्स हमेशा ऑर्डर फॉलो करता है, या उसका हेड ऑफ जो इंचार्ज है इज फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द रॉयल फैमिली और सार, तो उसका एक क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी हो गई। क्लोज नहीं होगा क्या सोल्जर, आर्मी क्लोज नहीं कि रूलर के। तो एक बार ऐसी सिचुएशन आती है कभी, तो हम एक बार कंसल्ट तो करेंगे ना साहब से। तो सोल्जर अलोंग विद द वर्कर्स, जो उसके क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे थे, अलोंग विद द वर्कर्स, वो सब है, उन्होंने साहब को एडवाइस दी इट इज बेटर आप अभी अपना जो भी जो पोस्ट है इससे रिजाइन दे दें, इसको छोड़ दें। क्योंकि हमेशा जो क्लोज होते हैं वो सजेशन ही देते हैं, अगर नहीं फॉलो करो तो यूज बेहतर ही है, आप इधर मुक्त होकर कुछ नहीं।
तो यू नो क्लोज दिस हैपेंस इन रशियन। तो ए डेलीगेशन वेंट टू साल। अब डेलीगेशन ये वही है पेट्रोग्राड सोवियत, किसने बनाया? सोल्जर प्लस वर्कर्स। तो डेलीगेशन वेंट टू द सार एंड सार मिलिट्री कमांडर, सार मिलिट्री कमांडर जो अपोज द सार ऑर्डर, जिसने अपोज किया था उसके ऑर्डर का, सार मिलिट्री कमांडर एडवाइस हिम टू एब्डिकेट, मतलब आप अपने सीट को या अपने जो उसको पोस्ट को छोड़ दीजिए, समझो, यानी राजा से आप हट जाइए, या यू बिकेम कंटिन्यू राजा बट पावर हैंड ओवर टू द डेमोक्रेसी। जैसे होता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म इन फ्रेंच रेवोल्यूशन कि रूलर भी था, एक कंसल्ट कमेटी भी बना दी। तो आफ्टर द सोवियत लीडर एंड डूमा लीडर्स फॉर्म ए प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब इसके बाद में कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई? प्रोविजनल गवर्नमेंट। जब उसने यू नो सारे इस पोस्ट, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट इज फॉर्म इन रशिया, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी। और इन फ्रांस कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी? नेशनल असेंबली। फ्रांस में भी नेशनल, बेटा मैं तेरा बॉडी ऐसे कुछ बैठने वालों में से नहीं, पर थोड़ी देर बैठ जाए, मेरे जाने के बाद तेरी इच्छा हो तो ना इधर से उधर तुम लोग। तो यू नो ए प्रोविजनल गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द सोवियत पेट्रोग्राड, जो डिफरेंट पेट्रोग्राड, इतनी यूनियंस बन गई इन रशिया, मोर देन 500 यूनियंस। रशिया एक बहुत लार्ज नेशन है। तो यू नो 500 पेट्रोग्राड इज फॉर्म इनसाइड द रशिया एंड दे फॉर्म ए गवर्नमेंट व्हिच नोन बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट। Constitutional Assembly on this basis of universal added suffrage given to all, सबको right to vote दे दिया गया। And finally Feb revolution brought down the monarchy, monarchy का क्या हुआ? End हो गया through the Feb revolution। अब यहाँ पे यू नो सोशल डिवीजन चल रहा है। ये तो फॉर्म की प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय द वर्कर्स एंड सोवियत। तो हु आर द वर्कर्स? यू नो वेरी वेल, मेंशेविक थे कि बोल्शेविक? बोल्शेविक ना। अब वो भी तो कुछ डिमांड करेंगे, यू नो दोस हु आर द मेंशेविक। मेंशेविक मतलब पीजेंट्स जो माइनॉरिटी में थे, जिन्होंने कहा था पार्टी ओपन फॉर ऑल। दिस वाज स्टेटमेंट गिवन बाय मेंशेविक। तो आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन व्हाट हैपेंस? प्रोविजनल गवर्नमेंट इज फॉर्म एंड डोमिनेटेड बाय आर्मी, क्योंकि उसके अंदर आर्मी कमांडर भी थे। तो सच गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट किसके द्वारा फॉर्म हुई? मोस्टली वर्कर्स प्लस आर्मी लीडर। तो इट वाज द डोमिनेटेड बाय आर्मी ऑफिशियल्स एंड लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी बिजनेसमैन थे, उन्होंने गवर्नमेंट। Later on, liberals and socialists also worked towards for a elected government. तो later on, liberals और socialists started the work for the elected government. Elected government के लिए work करना start किया उन्होंने। And restriction on public meeting and association were removed. जब उनकी खुद की वर्कर्स की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, अब देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आएगा? क्योंकि एक डिमांड की है वर्कर्स की और another one industries, men जो businessmen, they also supporting this movement. तो वर्कर्स की डिमांड क्या है? इंप्रूव वेजेस, वर्किंग आवर्स शुड बी रिड्यूस। अगर ये सब चीजें कर दोगे, आप दोगे, तो लॉस किसको होगा? बिजनेसमैन और इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री मैन भी इसको सपोर्ट कर रहा है और उसको पता चला कि इनकी डिमांड माननी पड़ेगी, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन द इंडस्ट्री बिजनेसमैन एंड द बिटवीन द वर्कर्स। Restriction on public meeting and association which was illegal earlier, it has removed in Russia. When it was illegal? तो एक इलीगल था, बट फिर भी उसके बाद एक यूनियन फॉर्म हुई थी वहां पे। वो भी मैंने सब लिखवाया होगा, आपने लिखो इजी होगी। तो लिबरल्स एंड सोशलिस्ट आल्सो वर्क टुगेदर। Restriction on public meeting and the association were removed. Soviet like Petrograd, Soviet were formed everywhere. जो सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत हर जगह फॉर्म हो गए इस टाइप। तुम्हारा बेच चेंज कर दूंगा मैं मंडे से, तुम उसमें बैठना दूसरे से। एंड
In April 1917, the Bolshevik leader, who was the Bolshevik leader? Lenin. तो लेनिन रिटर्न फ्रॉम द जेल तो गया नहीं था, देश से बाहर निकला था यार, देशद्रोह का मुकदमा चला था, एक्साइल जो बाहर देशद्रोह का जिसको बोलते हैं ना, देश निकाला जिसको मिला था, तो ही इज रिटर्न फ्रॉम द आउटसाइड, उसका जो देश निकला तो खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया? दिया किसने था? सार ने दिया था। जब सार ही नहीं रहा तो कौन रोकेगा अंदर आने से? आ गया। ऐसे पाकिस्तान में चलता है ऐसा सिस्टम। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट बनती है तो वो मुशर्रफ को देश निकाला देते थे, जब मुशर्रफ की बनती है तो उसको नहीं आने देते। बेनजीर भुट्टो को बैन कर दिया, जब बेनजीर भुट्टो आई तो मारी गई। पाकिस्तान में ये सिस्टम चलता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इन योर डेमोक्रेसी, और आउट टू द पावर मिसयूज बाय द जनरल परवेज मुशर्रफ, he has declared himself as the president। उसने डेजिग्नेशन चेंज करके प्रेसिडेंट से क्या कर लिया? आर्मी हेड उसका वो कर लिया, प्रेसिडेंट चेंज कर लिया आर्मी हेड से, और इलेक्शंस करवा दिए, और इलेक्शन में सुपर पावर के अपने पास रख लिया कि if president not satisfied तो he can dismiss the provisional government। दो कई भी इलेक्शन होंगे उसको मैं डिसमिस कर सकता हूं, और जो इलेक्टेड लीडर्स बने they will take the decision after consult of the army leader। तो वहां कंसल्ट कमेटी बना दी। सिस्टम तो सेम ही है जो भी चल रहा है। आर्मी लीडर से कंसल्ट करके पॉलिटिकल लीडर डिसीजन लेगा, तो आर्मी लीडर किसको सपोर्ट करेगा? मुशर्रफ को। और फिर मुझे लग गया जैसे ऐसी गवर्नमेंट बना दी उन्होंने, जैसे यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी सपोज यहाँ प्रेसिडेंट हमारे यहाँ अलग होते, प्रेसिडेंट को इतना पावर नहीं, वो प्रेसिडेंट बन गया, वी वांट डिक्टेटरशिप। तो सपोज इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी गवर्नमेंट और एनी स्टेट, सपोज भाई कांग्रेस गवर्नमेंट है वहां से सेटिस्फाइड नहीं, उसको डिसमिस कर दो, इलेक्शन करो, तो इस टाइप का पावर ले लिया, तो ये डिक्टेटरशिप ही तो हुआ ना। डिटेल जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बताऊंगा पूरी डिटेल आपको। तो इन दिस you know when Lenin has written inside the Russia in April 1917, he believed that it was the time for the Soviet to hold the power। उन्होंने क्या थे वो स्टेटमेंट दिया कि ये टाइम है कि हम सोवियत को टुक ओवर कर ले, यानी सबको हम कंट्रोल में कर ले जो उसकी सपोर्टर है। It is the time, believe that it is the time for Soviet to took over the power। तो he has given the April thesis, जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 3 डिमांड बाय द लेनिन, that is known as the April thesis। What was the April thesis? First, land should be redistributed to the farmers। जो नोबल्स के पास लैंड चली गई उसको वापस हैंड ओवर किया जाए, किसको? फार्मर्स को। और पहले आप एक स्टेटमेंट स्टडी कर चुके हो कि यहाँ के जो फार्मर्स थे वो नोबल के प्रति रेस्पेक्ट नहीं रखते थे, जैसा कि फ्रांस रेवोल्यूशन में देखा है। तो they were anti against the nobles। तो यू नो फार्मर एक दूसरे के प्रति सोशलिज्म थे, कम्युनिस्ट थे। तो यू नो लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूट टू द फार्मर्स। सेकंड डिमांड, बैंक शुड बी नेशनलाइज, जितने भी बैंक है उनको नेशनलाइज किया जाए। एंड थर्ड डिमांड, वॉर शुड बी स्टॉप। जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें स्टार ने सपोर्ट किया। यू नो ये वैसे तो ड्रामा स्टार्ट हुआ, और कैसे पहले सब पब्लिक क्या कर रही थी, यू नो व्हेन वी स्टार्ट द पैराग्राफ कि सारे सपोर्टेड वार इज सपोर्टेड, हां सारे सपोर्टेड वार इज सपोर्टेड, यानी सार को समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब वार को मिल रहा है, या वार को मिल रहा है, इट मींस सार को मिल रहा है। बट अनपॉपुलर उसका जो सपोर्ट बढ़ा, लेकिन इट वेंट डाउन टू 3 रीजन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। राजपूत ने 2-3 रीजन ये वार। अब यहाँ से कहा गया कि वार को स्टॉप किया जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें रशिया पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि 4 ईयर तक वार चला कंटिन्यू। ये 1917 का टाइम चल रहा है, क्योंकि लेनिन कब आया? 1917, और वर्ल्ड वॉर स्टॉप हुआ था 1918। सेकंड वन, बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। एंड थर्ड वन, अगर वार को आप लास्ट मान रहे हो, इट मींस लैंड शुड बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑल 3 डिमांड नोन बाय द अप्रैल थीसिस, डिमांडेड बाय द लेनिन। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ये रखी गई थी, अब आगे उसके लिए देखो ना, ये डिमांड रखी गई थी अप्रैल थीसिस। आज सभी की लैंड की डिस्ट्रीब्यूट हुई, वार स्टॉप हुआ। वार तो हालांकि रशिया जीत गया था लास्ट में, वो आप 10th में पढ़ोगे, कभी मुझे टाइम मिला तो आई विल एक्सप्लेन कि क्या क्या लॉस हुआ था रशिया को। आपने थोड़ा बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो पढ़ लिया, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंटियर तो स्टडी कर लिया ना। ओके, तो war should be brought to an end, land to be transferred to the peasants, and bank to be nationalized। 3 demand।
He also argued to rename the Bolshevik party as a communist party. देखो यहाँ क्या क्लेम किया है कि जो बोल्शेविक पार्टी इसको रिनेम करके क्या कर दिया जाए कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट बोथ हैव द सेम इमोशन। कम्युनिस्ट में भी वही फीलिंग्स आते हैं कि हम सबको मिलके सब ये माने कि जैसे सपोज इनसाइड क्लासरूम जैसे फर्नीचर लगा हुआ तो जैसे आपके अंदर कम्युनिस्ट फीलिंग्स होती है ना कि ऑल फर्नीचर शुड बी फॉर ऑल, कोई कहीं भी बैठे सबके लिए, ये हो गया ये कम्युनिस्ट है। लेकिन आप व्हेन यू आर अटेंडिंग एनी प्रोग्राम तो वहां लग जाता है कि जो टॉप पे कौन बैठेगा, दोज हु आर द वीआईपी और लाइक दिस, उसके पीछे थोड़े उससे कम वीआईपी और पीछे उसके वो ऐसे होते हैं ना बहुत सी जगह, वहां कम्युनिस्ट फीलिंग्स की होती है या स्टूडेंट में कम्युनिस्ट फीलिंग्स आती है। क्यों? यू ऑल आर वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म, लाइक किसी बच्चे को भी लगे अब सपोज हम बोलते हैं आपको कि यू मे बी यू वेयर द कलरफुल यूनिफॉर्म, तो आप देखोगे सम मे बी वेयर द ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड शर्ट और व्हाटएवर, तो उससे आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट लगेगी, तो आपके अंदर कहीं पे फीलिंग्स आएगी कि रिच और पुअर लाइक एक डिवीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये यूनिफॉर्म है, फिर होते ही जैसी लगे, ठीक है। इसलिए अब आप में क्या है यहाँ पे